Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So last time we have ended our chapter number 4, unit number 4 of this subject, that is wave propagation chapter. Now today we are going to start the last unit of this subject, the last chapter of this subject, that is antenna. So we are going to start the new chapter in this lecture, and this is the last chapter of this subject. The chapter name is antenna. So before going to study in detail in antenna chapter, first of all we want to understand what is the function of antenna, what is the purpose of antenna, for what purpose we are using antenna, and how it is related in communication field. So as you know very well, what are the functions of antenna? The first point, it is written over here, to radiate electromagnetic wave from transmitter side to free space. So whatever your information you have converted into its electrical form, then you have done the modulation. Now you wants to transmit it over a communication channel, over a medium. So communication channel medium, we have seen, it can be wired or can be wireless. So the electronic communication basically is more mainly done over a wireless medium. So in wireless medium your information travels in free space in the form of electromagnetic waves. So for radiating the electromagnetic waves, the information which is covering in electromagnetic waves must be transmitted into free space from the transmitter side. So the job of antenna, the first job of antenna is at the transmitter side to transmit your electromagnetic waves into free space. From transmitter, your information will be transmitted into free space through antenna. Similarly, the second function of the antenna is to pick the signal from free space and provide it into the receiver side. So in the both the side, at the transmitter side as well as at the receiving side, antenna is used. What is the purpose of antenna? The purpose of antenna is to transmit your information signal, your electromagnetic waves into free space at the transmitter side, from the transmitter side. Similarly, from the receiving side, the front end will be the antenna, where the antenna is going to pick up your electromagnetic waves and will provide it to the receiver. सो ये दो मेन फंक्शन होते हैं अपने एंटेना के. एंटेना का मेन फंक्शन क्या है? ओनली ट्रांसमिट एंड रिसीव. क्या ट्रांसमिट एंड रिसीव करने का? ट्रांसमिट करने का अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. कहाँ पे ट्रांसमिट करने का? फ्री स्पेस में, एयर मीडियम में, ताकि तुम्हारी इंफॉर्मेशन सिग्नल फिर ट्रैवल करे एक जगह से दूसरी जगह पे. सिमिलरली रिसीविंग एंड में फ्रंट साइड पे सबसे पहली चीज़ क्या होगी? एंटेना ही होगा जो फ्री स्पेस से तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पिकअप करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा. कहाँ पे प्रोवाइड करेगा? रिसीवर पे. सो ये दो मेन फंक्शन है, दो मेन रोल है एंटीना के. तो मेन एंटीना आपको पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए. इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए एंटीना यूज होता है. नाउ अब इसी से हम लोग को आगे बढ़ना है. धीरे धीरे एक एक टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है एंटेना से रिलेटेड. तो सबसे पहले जो टर्म आपके सामने जो आई है वो एंटेना से रिलेटेड, वो क्या? ये आइसोट्रॉपिक एंटेना. तो व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंटेना, सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे. तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो, व्हाट इज रिटन ओवर हियर इन आइसोट्रॉपिक एंटेना. आइसोट्रॉपिक एंटेना इज एन एंटेना व्हिच रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो आइसोट्रॉपिक एंटेना वो एंटेना होता है जो इक्वली रेडिएट करता है हर डायरेक्शन में. चाहे कोई सा भी डायरेक्शन हो, उसका रेडिएशन जो है वो एक ही जैसा होगा, चाहे कौन सा भी डायरेक्शन आप कंसिडर करो. तो ये बेस एंटीना होता है. तो आइसोटोपिक एंटीना क्या है? इज एन एंटीना विच रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. द स्ट्रेंथ ऑफ पावर डेंसिटी एट एनी डायरेक्शन विल रिमेन सेम. तो जो भी स्ट्रेंथ है पावर डेंसिटी की, कोई भी डायरेक्शन में आप कंसिडर करोगे इक्वल रहेगा. जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, बीच में ये एक रेडिएटर है जो रेडिएट करता है. जो क्या रेडिएट करता है? पावर डेंसिटी को रेडिएट करता है. रेडिएशन जो क्या करता है? रेडिएट करता है. तो इसका जो रेडिएशन है वो आपको हर डायरेक्शन में सेम ही नजर आएगा. तो इसके लिए सर्कल के जैसा इधर पे ड्रॉ किया हुआ है. इफ यू कंसिडर द 0 डिग्री, द रेडिएशन पैटर्न विल रिमेन सेम. इफ यू कंसिडर द 90 डिग्री, द रेडिएशन पैटर्न विल रिमेन सेम. इफ यू कंसिडर 180 डिग्री, सेम रेडिएशन.
if you consider 270 degree, same radiation. So strength of power density you will get same at each and every direction. So this radiator at the center will radiate equally in each and every direction. That's why इसको और क्या नाम से कहा जाता है, इसको और एक नाम से कहा जाता है ओमनी डायरेक्शनल. ओमनी मतलब इक्वल, equally radiating in each and every direction. So that's why isotopic antenna is also known by omnidirectional antenna. तो एक ये बेस चीज़ आप लोग क्लियर कर लो कि आइसोटोपिक एंटीना क्या होता है. तो आइसोटोपिक एंटीना वो एंटीना होता है जो इक्वली रेडिएट करता है ईच एंड एवरी डायरेक्शन में, चाहे कौन सा भी डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे उसका रेडिएशन, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है पावर डेंसिटी की, वो सेम ही मिलेगी आपको in each and every direction. That's why isotopic antenna is also known by omnidirectional antenna. Omni means equally रेडिएटिंग इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में उसका जो रेडिएट करने का जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा. ओके, गॉट इट एवरीबडी. सो आइसोटोपिक एंटीना क्या है, वो एंटीना क्लियर हुआ, आपको समझ में आया. यहाँ पे बीच में सेंटर में वो रेडिएटर है जो रेडिएट करता है, पावर को रेडिएट करता है. तो आप कौन सा भी डायरेक्शन कंसीडर करोगे उसका रेडिएट करने का जो पैटर्न है वो आपको सेम मिलेगा. वो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा. इक्वल अमाउंट ऑफ पावर यू विल गेट इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन. So that's why this antenna is also known by omnidirectional antenna. Now we are moving ahead. अब हम लोग आगे और इससे रिलेटेड एंटेना से रिलेटेड चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे. तो आपके सामने अभी हम लोग को ये चीज़ क्लियर करना है, डेफिनेशन. देयर आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू एंटीना. तो वो डेफिनेशंस क्या क्या है वो हम लोग को अभी अंडरस्टैंड करना है. ऑल दिस डेफिनेशंस आर गिवन इन योर सिलेबस. तो हम लोग वन बाय वन करके जो भी डेफिनेशंस, जो भी टर्म्स एंटीना से रिलेटेड है उसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे. तो द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म गिवन टू यू इज रेडिएशन पैटर्न. तो रेडिएशन पैटर्न क्या है पहले तो वो हम लोग को समझना है, वो अंडरस्टैंड करना है कि एंटेना से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो हमेशा रिलेट करती है, वो है रेडिएशन पैटर्न. तो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है पहले वो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज रेडिएशन पैटर्न? इट इज रिटन अ ग्राफ और अ डायग्राम विच टेल्स अस अबाउट द मैनर इन विच एन antenna radiates power in different direction is known as radiation pattern. तो सबसे पहले रेडिएशन पैटर्न क्या है? रेडिएशन पैटर्न इट इज़ नथिंग बट ये एक ग्राफ है, ये एक डायग्राम है जो हम लोग को क्या बताता है, वो हम लोग को बताता है कि किस तरीके से, किस मैनर में एक पर्टिकुलर एंटेना रेडिएट करता है, पावर को रेडिएट करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन. जैसे कि अभी हम लोग ये आइसोटोपिक एंटेना का देख रहे थे. तो आइसोटोपिक एंटेना का ये डायग्राम क्या है? ये रेडिएशन पैटर्न ही है. यानी ये वो डायग्राम जो हम लोग को क्या बताता है, वो बताता है एंटेना किस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में पावर को रेडिएट करता है. तो उस डायग्राम को, उस पैटर्न को, उस मैनर को रेडिएशन पैटर्न कहते हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जो है एंटीना से रिलेटेड, वो आपको क्या चीज़ समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रेडिएशन पैटर्न. तो कोई भी एंटीना का बिहेवियर, कोई भी एंटीना का वर्किंग हमको किससे मालूम पड़ेगा? उसके रेडिएशन पैटर्न से मालूम पड़ेगा. तो रेडिएशन पैटर्न क्या है, इट्स क्लियर. तो वो डायग्राम, वो ग्राफ जो हमको समझाता है, जो हमको बताता है कि ये पर्टिकुलर एंटीना किस तरीके से रेडिएट कर रहा है पावर इन डिफरेंट डायरेक्शन, उस डायग्राम को, उस पैटर्न को कहते हैं रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटेना. जैसे कि अब आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है. ये डायग्राम में आपको एक पर्टिकुलर एंटेना का रेडिएशन पैटर्न बना के दिखाया हुआ है. तो इन दिस डायग्राम यू आर एबल टू सी 4 डायरेक्शंस दिखाए हुए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री. नाउ इन दिस पर्टिकुलर रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटेना व्हाट यू आर एबल टू सी, हम लोग ये चीज़ एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एंटेना है, इसका जो रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, ये एंटेना 180 डिग्री पे बहुत ज़्यादा रेडिएट कर रहा है और बहुत कम रेडिएट कहाँ पे कर रहा है, 0 डिग्री पे. तो ऐसे टाइप के एंटेना को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मतलब ये होता है जो एंटेना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेडिएट करता है. बाकी एज कम्पेयर टू ऑल अदर डायरेक्शन उसका रेडिएशन एक डायरेक्शन में मैक्सिमम है. यानी उसका फोकस जो होगा, उसका फोकस एक ही डायरेक्शन में होगा. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल.
unidirectional antenna. So unidirectional antennas are those antennas which radiate maximum in a particular direction. तो जैसे ये डायरेक्शन में ये रेडिएशन पैटर्न में ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है. हम लोग यूनि डायरेक्शन एंटीना के बारे में नहीं पढ़ रहे, जस्ट ये डायग्राम आ गया है तो मैं आपको उसके बारे में समझा रहा हूँ. तो ये भी जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है ये क्या है, रेडिएशन पैटर्न है. ये पैटर्न कौन सा है, एक एंटीना का है जो यूनि डायरेक्शनल टाइप का है. जो यूनि डायरेक्शन टाइप का मतलब क्या होता है, जो एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएट करता है एज कंपेयर टू अदर डायरेक्शन. तो दिस इज ऑल्सो डायग्राम, एग्जाम्पल डायग्राम ऑफ रेडिएशन पैटर्न. ऐसे हम लोग रेडिएशन पैटर्न आगे चल के अलग अलग एंटीना के देखने वाले, पढ़ने वाले. तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. जैसे कि इधर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर द रेडिएशन पैटर्न ऑफ गिवन एंटीना इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज इट रेडिएट्स मैक्सिमम at 180 degree compared to other direction. So compared to all other direction, all three direction, 180 degree direction में रेडिएशन इसका कैसा है, मैक्सिमम. तो इस तरीके के एंटेना को बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल एंटेना. तो दो तरीके के एंटीना देख लिए, एक ओमनी डायरेक्शनल देखे जो आइसोटोपिक एंटीना होता है जो इक्वली रेडिएट करता है हर डायरेक्शन में. और एक एग्जांपल आपके सामने रेडिएशन पैटर्न जब पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो ये डायरेक्शन रेडिएशन पैटर्न आ गया जिसमें ये मालूम पड़ रहा है कि 180 डिग्री में ये एंटीना मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है. तो इसके लिए इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल एंटीना. सो आई होप अभी रेडिएशन पैटर्न का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा. तो रेडिएशन पैटर्न क्या है, डायग्राम है, ग्राफ है, जो हमको क्या समझाता है कि कोई एंटीना किस तरीके से पावर को रेडिएट करता है अलग अलग डायरेक्शनों में. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू एंटीना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटीना गेन. आप गेन के बारे में तो आपको मालूम है, हर एक चीज़ का आप लोग गेन पढ़ते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो एंटीना का गेन क्या होता है वो चीज़ अभी आप लोग को अंडरस्टैंड करना है. सो व्हाट इज एंटीना गेन? द गेन ऑफ एंटीना इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीना टू द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अ आइसोटोपिक एंटीना विद सेम इनपुट पावर. तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है ना एंटीना गेन कैलकुलेट करने के लिए, अब अपना बेस एंटीना हमेशा आइसोटोपिक एंटीना है. बेस एंटीना अपना कौन सा एंटीना होगा, आइसोटोपिक एंटीना. क्यों? क्योंकि ये एंटीना ऐसा है जो इक्वली रेडिएट करता है हर डायरेक्शन में. तो आपको अब जब आपको कोई भी एंटीना का गेन कैलकुलेट करना है, तो कोई भी एंटीना का गेन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, यानी वो पर्टिकुलर एंटीना एक डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम रेडिएट करता है टू दी मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोटोपिक एंटीना विथ सेम इनपुट पावर. सेम इनपुट पावर यानी जो इनपुट आप दे रहे हो उस एंटीना को सेम अमाउंट ऑफ इनपुट आप आइसोटोपिक एंटीना को दो. तो दोनों का रेशियो करना है. द गेन ऑफ एंटीना इज नोन बाय रेशियो ऑफ, यानी वो पर्टिकुलर एंटीना कितना मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है पावर को टू दी मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोटोपिक एंटीना विद सेम इनपुट पावर. तो हमेशा बेस एंटीना अब अपने को किसका माना जाएगा, आइसोटोपिक एंटीना को. तो एंटीना का गेन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को, कोई भी एंटीना का गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो एंटीना कितना मैक्सिमम रेडिएट करता है और अपॉन में रेशियो कर लो वही सेम इनपुट पावर में आइसोटोपिक एंटीना कितना रेडिएट करता है. तो इस तरीके से आपको उस एंटीना का गेन मालूम पड़ेगा. तो यही चीज़ इधर पे लिखी हुई है, मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी बाय पर्टिकुलर एंटीना टू द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी बाय आइसोटोपिक एंटीना. ना इसी से रिलेटेड ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको क्वेश्चन में आते हैं, पूछता है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एंटीना गेन्स. दैट्स व्हाई ये टर्म जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंटीना के लिए. सो व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स, इसलिए मैं साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी इसका कवर कर लिया हूँ. न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एंटीना गेन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ हाफ वेव डाइपोल एंटीना इज कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग 1 किलोवाट and has 2.15 dB gain over an isotopic antenna. So how much power must be delivered to the isotopic antenna? तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक टाइप का एंटीना है जिसका नाम है हाफ वेव डाइपोल एंटीना. ये कैपेबल है कितना पावर रेडिएट करने के लिए, 1 किलोवाट का पावर रेडिएट करने के लिए. और इसका गेन भी आपको दिया हुआ है. इसका गेन जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 2.15 dB, 2.15 dB का गेन इस एंटीना का दिया हुआ है ओवर एन आइसोटोपिक एंटीना. आइसोटोपिक एंटीना को कंपैरिजन में लेके. तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मच पावर मस्ट बी डिलीवर टू द आइसोटोपिक एंटीना. तो कितना पावर आइसोटोपिक एंटीना को डिलीवर करना चाहिए सो दैट जो उसका 1 किलोवाट का पावर रेडिएट कर रहा है एंड उसका गेन कितना है 2.15 dB का गेन दिया हुआ है.
तो अभी आपसे ये घुमा के पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आइसोटोपिक एंटीना का कितना पावर डिलीवर करना चाहिए जबकि गेन इसका दिया हुआ है। टू मैच फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन एंटेना, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में P1 आपको दिया हुआ है। P1 यानी वो पावर जो आपका एंटेना, पर्टिकुलर एंटेना रेडिएट कर रहा है। सो P1 आपका कितना है, 1 किलोवाट। आप लोग इधर पे करेक्ट कर लेना, इट इज़ 1K, 1 किलोवाट। गेन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2.15 dB। तो अब एंटीना गेन का सोल्यूशन देख लो। एंटीना गेन इज इक्वल टू 10 log ऑफ P2 बाई P1। देखो जब गेन डेसिबल में है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा 10 ऑफ log ऑफ बेस 10, बिकॉज द पावर के टर्म में दिया हुआ ना, गेन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ पावर डेसिबल 2.15 dB। सो एंटीना गेन इज 10 log ऑफ P2 बाई P1। P2 is the power radiated by isotopic antenna, P1 is the power radiated by particular antenna। तो एंटीना का गेन कितना दिया हुआ है, 2.15। ये जो 10 log ऑफ बेस 10 था, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला 10 था लेफ्ट साइड में लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 2.15 डिवाइड बाई 10 log ऑफ P2 बाई 1K। सो 2.15 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.215 आएगा, और log ऑफ P2 अपॉन P1। ना अभी आपको यहाँ से राइट साइड से log हटाना है, तो इसके लिए आपको दोनों बाजू में क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। सो बाय टेकिंग एंटी लॉग, आपके कैलसी में एंटी लॉग का ऑप्शन रहेगा, शिफ्ट बटन दबा के लॉग बटन दबाना, तो इट इज़ गोइंग टू बी एंटी लॉग। डायरेक्ट लॉग बटन प्रेस करोगे तो वो लॉग होता है, और अगर एंटी लॉग लेना है आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके लॉग का बटन प्रेस करना, तो आपको वो एंटी लॉग दिखाएगा। सो एंटी लॉग ऑफ 0.215 करोगे तो यू विल गेट द आंसर इन योर कैलसी एस 1.6405, और यहाँ से एंटी लॉग ऑफ लॉग कैंसिल, P2 अपॉन 1K हो जाएगा। देन सिंपली सिर्फ ये 1K को आप उधर पे ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। सो 1.6405 मल्टीप्लाई बाय 1K, यू विल गेट 1.64 किलोवाट। सो एंटीना गेन नहीं, ये P2 है, करेक्ट कर लेना। इट इज़ नॉट एंटीना गेन। जो चीज़ हम लोग ने कैलकुलेट की है वो P2 कैलकुलेट की है। सो राइट डाउन ओवर हियर P2, that is power delivered by isotopic antenna, it is 1.64 kilowatt। ओके, एवरीबडी गॉट इट, समझ में आया आप लोग को। सो यहाँ पे हम लोग को पावर जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय आइसोटोपिक एंटेना, तो उसको P2 से डिनोट करते हैं। सो P2 अपॉन P1। देखो ये लॉग में था, इसके लिए हम लोग को रेशियो इस तरीके से कंसिडर करना पड़ा। नॉर्मल जो मैंने आपको डेफिनेशन में रेशियो बताया वो क्या बताया, P1 अपॉन P2 बताया, लेकिन लॉग में कंसिडर करने के लिए यहाँ पे आपको P2 बाई P1 करना पड़ा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो P2 पावर डिलीवर्ड बाय आइसोटोपिक एंटीना, इट इज 1.64 किलोवाट। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज आल्सो गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी सैम्पल पेपर का ही था या बोर्ड का कोई क्वेश्चन था। यहाँ पे भी वैसे दिया हुआ है, प्रैक्टिकल एंटीना हैज डायरेक्टिव गेन ऑफ 5 dB। तो यहाँ पे एंटीना का जो गेन है वो आपको दिया हुआ है 5 dB, और रेडिएट करता है पावर कितना, 1200 वाट। तो वो जो एंटेना है उसका गेन भी दिया हुआ है, और पावर कितना रेडिएट कर रहा है वो भी दिया हुआ है। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, हाउ मच पावर एन आइसोटोपिक एंटेना शुड रेडिएट इन ऑर्डर टू हैव सेम पावर डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसा ही है। P1 आपको 1200 वाट दिया हुआ है, गेन आपको 5 dB दिया हुआ है, P2 पूछ रहा है, P2 कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। So antenna gain 10 log of base 10 P2 by P1, 5 divided by 10 0.5। we will do anti-log of 0.5, you will get 3.162, और P2 upon 1200, तो 1200 को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। So you will get P2, that is power delivered by isotopic antenna, as 3.792 kilowatt। तो ये देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसने ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया। बिल्कुल सेम पैटर्न का था, खाली वैल्यू चेंज हुई थी P1 की और गेन की। देन मूविंग अहेड, ये सब न्यूमेरिकल्स हो गए रिलेटेड टू एंटीना गेन, इसलिए साथ ही साथ में मैंने डेफिनेशन के साथ में ही कवर कर दिया न्यूमेरिकल को भी, ताकि वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन रिलेटेड विद एंटीना इज डायरेक्टिविटी। The third term related with antenna is directivity. So what is given over here, directivity? Directivity is the maximum directive gain which is obtained in only one direction in which the radiation is maximum. So डायरेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे क्या समझाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो गेन मिलता है, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन जो मिलता है इन ओनली वन डायरेक्शन इन विच रेडिएशन इज मैक्सिमम। अब जो डायरेक्शन में एंटेना मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है
उसमें उसका मैक्सिमम गेन, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिविटी। जैसे कि आपको ये एक एग्जांपल बताया था मैंने, ये रेडिएशन पैटर्न बताया था, तो ये रेडिएशन पैटर्न में जो एंटेना मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, 180 डिग्री में। तो इस पर्टिकुलर 180 डिग्री मैक्सिमम रेडिएशन में जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन मिलेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, डायरेक्टिविटी। तो डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन विच इज ऑब्टेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द रेडिएशन इज मैक्सिमम। तो जो डायरेक्शन में रेडिएशन मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज नोन एज डायरेक्टिविटी ऑफ एंटेना। सो डायरेक्टिविटी ऑफ एंटेना इज नथिंग बट, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और सिंपली इधर पे क्या लिख दिया हुआ है, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, ये डायरेक्टिव क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्शन में जहाँ पे रेडिएशन मैक्सिमम है, तो उसका जो मैक्सिमम गेन, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। तो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन को क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्टिविटी ऑफ एंटेना। ठीक है, म्यूट करो शेख सोहेल। So directivity is the maximum directive gain which is obtained in only one direction in which the radiation is maximum. Then the next term is power gain. आपका वीडियो क्यों ऑन हो रहा है बार बार शेख सोहेल? वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए, वीडियो को बंद करो शेख सोहेल, वीडियो बंद करो। सोहेल अहमद, yes, thank you. Power gain, AP. It is defined as the ratio of power fed to isotopic antenna to the power fed to the directional antenna to develop the same field strength in the direction of maximum radiation. अब बहुत सारी टर्म ऐसे रिलेटेड दी हुई है, पावर गेन करके अभी दिया हुआ है। पावर गेन के बारे में क्या बताया हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर फेड टू आइसोटोपिक एंटेना, यानी वो पावर जो आइसोटोपिक एंटेना को देते हैं टू द पावर फेड टू डायरेक्शनल एंटेना, और जो पर्टिकुलर डायरेक्शनल एंटेना आप यूज कर रहे हो उसको पावर देते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप, क्या चीज के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप सेम फील्ड स्ट्रेंथ पाने के लिए इन अ डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। तो पावर गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर गेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो एंटीना आप यूज कर रहे हो उसमें कितना पावर लग रहा है, और सेम अपना अमाउंट ऑफ पावर किस में दिया जा रहा है, आइसोटोपिक एंटेना में, किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप सेम फील्ड स्ट्रेंथ, सेम टाइप ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ पाने के लिए। तो दैट रेशियो इज नोन एज व्हाट, पावर गेन। तो यहाँ पे चीज में अभी एपी से डिनोट किया हुआ है पावर गेन को। सो पावर गेन फेड टू आइसोटोपिक, पावर फेड टू आइसोटोपिक एंटेना टू द पावर फेड टू डायरेक्शनल एंटेना। तो जो पावर आप आइसोटोपिक एंटेना को दे रहे हो अपॉन पावर फेड टू डायरेक्शन एंटेना, इन ऑर्डर, क्या चीज के लिए, इन ऑर्डर टू डेवलप सेम फील्ड स्ट्रेंथ, सेम फील्ड स्ट्रेंथ पाने के लिए। तो ये रेशियो जो आप करोगे, निकालोगे, दैट द रेशियो इज नोन एज व्हाट, पावर गेन। और पावर गेन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, हीटा इनटू कैपिटल डी, वेयर हीटा इज द एंटीना एफिशिएंसी। कभी कभी आपको वो न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे भी आ जाएगा, कैलकुलेट पावर गेन। तो पावर गेन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हीटा इनटू डी, वेयर दिस हीटा इज द एंटीना एफिशिएंसी एंड कैपिटल डी इज द डायरेक्टिविटी। तो तीनों में से कोई दो चीज दी हुई है रहेगी, एक चीज को आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। सो पावर गेन का फॉर्मूला याद रखना, हीटा इनटू डी, हीटा इज एंटीना एफिशिएंसी एंड कैपिटल डी इज डायरेक्टिविटी। देन मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म इज बीम विड्थ। अब बीम विड्थ क्या होता है वो देखना है हम लोग को। बीम विड्थ, इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2-3 dB पॉइंट्स ऑन द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना। तो जो डायग्राम, जो रेडिएशन पैटर्न हम लोग ने देखे थे एंटीना का, उस एंटीना में जो एंगुलर सेपरेशन किया जाएगा, कब किया जाएगा, बिटवीन 2-3 dB पॉइंट्स। 3 dB पॉइंट मतलब ये जो अलग अलग सर्कल है, ये रेडिएशन पैटर्न अलग अलग डीबी के सर्कल रहेंगे। तो 3 dB, 3 डेसिमल पॉइंट के बीच के एंगल जो फॉर्म होगा उस एंगल को बोलते हैं बीम विड्थ। यानी ये पर्टिकुलर रेडिएट जो कर रहा है उसकी विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये रेडिएशन पैटर्न क्या हुआ है, रेडिएट कर रहा है, तो इसकी विड्थ कैलकुलेट करना है। तो उसकी विड्थ जो है वो कितना डिग्री कवर कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर सेपरेशन। तो बीम विड्थ सबसे पहले क्या है, इट इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, कहाँ पे, 2-3 dB पॉइंट्स। तो ये जो अलग अलग टाइप के सर्कल रहेंगे, कोई 0 dB का सर्कल रहेगा, ये 3 dB का सर्कल रहेगा, 4 dB का सर्कल रहेगा, ऐसा। तो 0 dB, ये ऊपर का जो फर्स्ट सर्कल होता है वो 0 dB होता है। फिर ये हो गया आपका -1, -2, -3, -5,
तो जो 3 dB सर्कल के बीच में जो 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट को मार्क करके जो एंगल फॉर्म होगा, दैट द एंगल इज नोन एज व्हाट, बीम विड्थ. सो द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू 3 dB पॉइंट्स, और इसको एक और चीज से भी कहा जाता है, हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं. 3 dB पॉइंट्स को और क्या कहते हैं, हाफ पावर पॉइंट. आप इसको 3 dB पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, यानी तो आप बोल सकते हैं 2 हाफ पावर पॉइंट्स ऑन द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना. So what is the beam width? Beam width is nothing but it is the angular separation between two 3 dB points on the radiation pattern of antenna. तो ये डायग्राम बना के आप समझा सकते हो, ये रेडिएशन पैटर्न था और ये जो दो एंगल हम लोग ने पॉइंट लिए, ये 3 dB का सर्कल था. तो इधर पे आप स्पेसिफाई कर देना 3 dB सर्कल. 3 dB सर्कल में दो पॉइंट हम लोग ने जो लिए, उनके बीच का जो एंगल, उस एंगुलर को बोलते हैं, एंगुलर मेजरमेंट को बोलते हैं बीम विड्थ. देन नेक्स्ट इज बैंडविथ. बैंडविथ ऑफ एंटेना. बैंडविथ तो आपको पता ही है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो यहाँ पे एंटेना से रिलेटेड बैंडविथ क्या है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द एंटेना वर्क सेटिस्फैक्टरीली इज नोन एज बैंडविथ ऑफ एंटेना. यानी वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे जहाँ पे एंटेना परफेक्टली सेटिस्फैक्टरीली वर्क कर रहा है. नो परफेक्टली सेटिस्फैक्टरी वर्क करने का मतलब क्या होता है, यानी प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है. तो वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एंटेना प्रॉपरली सेटिस्फैक्टरीली रेडिएट कर रहा है, उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ एंटेना. तो जब भी बैंडविड्थ का मतलब आता है, तो बैंडविड्थ का मतलब यही होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो एंटेना से रिलेटेड बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे एंटेना सेटिस्फैक्टरीली वर्क कर रहा है, दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ एंटेना. देन नेक्स्ट टर्म, पोलराइजेशन. पोलराइजेशन ये हम लोग ने वेव प्रोपोगेशन का पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन. तो अब एंटेना का पोलराइजेशन क्या है. पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड फ्रॉम एंटेना. तो इसमें भी उसी से रिलेटेड ही आया है. हम लोग ने वेव प्रोपोगेशन में पोलराइजेशन का मीनिंग वो देखे थे, द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के हिसाब से है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन. अब एंटेना में पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड फ्रॉम एंटेना. तो एंटेना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ एंटेना. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एंटेना रेडिएट कर रहा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ एंटेना. So polarization is defined as the direction of electric field in electromagnetic wave radiated from an antenna. So antenna से जो electromagnetic wave radiate हो रही है, उसमें electric field का direction is known as polarization of antenna. The next definition, power density. It is defined as the power per unit area in the field of antenna. So power की density यानी power पर यूनिट एरिया में कितना पावर रेडिएट हो रहा है उस पर्टिकुलर एंटेना से, दैट इज नोन एज व्हाट, पावर डेंसिटी ऑफ एंटेना. सो पावर पर यूनिट एरिया. पावर का तो आपको पता ही है, वोल्टेज E इंटू एच किया हुआ है. यहाँ पे E का मतलब क्या है और H का मतलब क्या है. E इज RMS इलेक्ट्रिक फील्ड एंड H इज RMS मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एच से. सो पावर डेंसिटी P इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय एच. यहाँ पे वही लिखा हुआ है, RMS इलेक्ट्रिक फील्ड, H इज RMS मैग्नेटिक फील्ड. Then next term is last term related to antenna definition, antenna resistance. तो एंटीना रेजिस्टेंस में दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं एंटीना में. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू लॉस. सो सबसे पहले यहाँ पे रेडिएशन रेजिस्टेंस के बारे में कवर किया हुआ है. व्हाट इज रेडिएशन रेजिस्टेंस. इट इज द रेशियो पावर एडेड बाय एंटीना, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना टू द स्क्वायर ऑफ करंट एट द इनपुट ऑफ एंटीना. तो रेडिएशन रेजिस्टेंस में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले RR का मतलब दिया हुआ है रेडिएशन रेजिस्टेंस. तो रेडिएशन रेजिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड, पावर एंटेना ने कितना रेडिएट किया, टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द इनपुट, टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द इनपुट ऑफ एंटेना. तो यहाँ पे इधर पे वही दिया हुआ है, रेडिएशन रेजिस्टेंस पावर रेडिएटेड बाय एंटेना टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द इनपुट. और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल रेजिस्टेंस एंटेना इज गिवन बाय, एंटेना का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो गिवन बाय क्या होता है,
radiation resistance plus RD. RD stands for resistance due to loss. So total antenna resistance is the sum of radiation resistance, यानी एंटीना के रेडिएशन करने में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है और रेडिएशन ड्यू टू लॉस, और रेडिएशन करने में कितना लॉस जो हुआ। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एट द इनपुट, और टोटल एंटीना रेजिस्टेंस इज आर आर प्लस आर डी, वेयर दिस आर डी इज रेजिस्टेंस ड्यू टू लॉस, यानी एंटीना जब रेडिएट कर रहा है तो वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस अकर होते हैं, तो उसमें जो लॉस होता है रेडिएशन, वो लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस होता है। तो आई होप आप लोग को ये सारी टर्म्स रिलेटेड टू एंटीना समझ में होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। आज के लेक्चर में हम लोग ने एंटीना के बारे में समझे, फंक्शन समझे, और जितनी भी टर्म्स रिलेटेड टू एंटीना थी वो समझे। आप में से कोई अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो, आई विल बी थैंकफुल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ज्वाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच।